Now, here we will see the detailed analysis of statistics and its related term. Statistics, the subject in which we study the characteristics of facts, is known as statistics. Now, here what does the characteristics of the facts mean? Here we will see that characteristics of facts are nothing but the collection of methods for planning experiments, obtaining data, and then organizing, summarizing, presenting, analyzing, interpreting, and drawing conclusions. Okay, it means statistics is nothing but the collection of methods for planning experiments. If we are having a sample and we are having a collection and organizing those collection in a perfect data, that is known as statistics and nothing else. Let us understand it by an example. For example, let we collect the facts and figures of the cars purchased in Kolkata during last 10 years. Now here we will see that the number of collection of cars which were purchased in Kolkata during last 10 years. Okay, then this collection is a statistics of car purchased in Kolkata during last 10 years. इसका मतलब ये है कि हम लोग समझते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोलकाता जो सिटी है वहाँ से 10 साल में कितने नंबर ऑफ़ कार्स परचेज्ड हुए हैं उन सब का कलेक्शन जो होगा वो जो नंबर होगा दैट इज़ और उस डेटा का जो कलेक्शन होगा दैट इज़ नोन एज स्टैटिस्टिक्स. ओके, after that let's move to the topic variable. Now coming to the variable are nothing but the characteristics or attribute that can assume different values. वेरिएबल कुछ भी हो सकता है जिसका एक से ज़्यादा वैल्यू हो, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो, उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी एक्स, वाई, जेड और वी कैन रिप्रेजेंट इट इन एनी फॉर्म. किसी भी तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसका वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होगा. एंड देयर इज़ अ नोट फॉर यू ऑल that if a variable assume only one value then it is called a constant. और अगर किसी भी variable का सिर्फ एक particular value होगा तब हम लोग उसे constant कहेंगे. Then at that time it won't be a variable, at that time it will behave as a constant. For example, अब इसको भी हम एक example से समझते हैं. जैसे let x equal to weight of person of city. हम लोग एक वेरिएबल लिए हैं x जो क्या डिनोट कर रहा है वेट ऑफ पर्सन ऑफ सिटी. एक सिटी का जितना भी पर्सन्स हैं उस सिटी में उन सब का वेट को डिनोट कर रहा है. देन वी कैन सी दैट x कैन एज्यूम वैल्यूज लाइक 45 kg, 40 kg, 70 kg and many on. Okay, so here x is a variable. For this example we come to the point that in a city there are different type of people. Okay, and all the people are having different weight. Yes, two people can have the same weight, but if we consider the data approx all around, then all people have different weight. Okay, that's why we say that x is a variable which denotes the weight of a person of a city and x carries different value. Okay, for example, some is weighing 45 kg, some of them 40, some are 70 and many more like this. So here x is a variable. Now you may have cleared the difference between the variable, okay, and constant too. So let's proceed further. Now in the second example we will see that let h is equal to number of prime ministers in India. ठीक है, यहाँ पे हम लोग h को कंसिडर किए हैं कि कितना नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स इन इंडिया को h कंसिडर किए यहाँ पे. देन वी एज्यूम ओनली वन वैल्यू. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स तो एक से ज़्यादा नहीं हो सकते ना, एक टाइम में तो एक ही प्राइम मिनिस्टर होंगे. देन हेयर h इज़ अ कांस्टेंट. ओके,
देन आई होप सो दैट कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस पता चल गया होगा क्या होता है. Now we will see the definition of statistic. But before that, I want to say that don't be confused with statistics and statistic. Both are different thing. Okay, not very much different, but little bit difference. Exactly, statistics is characteristics or measure obtained from a sample. It means that जो मेज़र हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर सैम्पल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग निकाल रहे हैं, दैट इज़ द स्टैटिस्टिक. ओके, एंड जो हम लोग कलेक्शन करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर डेटा का और उस वैल्यूज़ को जो रिप्रेजेंट करते हैं, दैट आर स्टैटिस्टिक्स. सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड विद द वर्ड स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिक. दे बोथ आर डिफरेंट. After that, further moving to sample. What is sample? A subgroup or subset of population is called a sample. अब population क्या होता है? For example, if we consider more than one number of datas and values, जो experimental data या फिर value होते हैं, जैसे for example consider करें एक city में कितने number of persons रह रहे हैं, number of population को अगर consider करें तो 10, 12, 13. ओके, मतलब वो उस एज ग्रुप के पर्टिकुलर एज ग्रुप के पॉपुलेशन पीपल हैं, तो वो एक पूरे पॉपुलेशन को फॉर्मेशन करेंगे. और उसका जो एक पर्टिकुलर पार्ट होगा, जैसे पॉपुलेशन में भी है ना कि उसमें स्टूडेंट्स हैं, फिर चिल्ड्रंस हैं, उसमें पेरेंट्स हैं, यंग एज के हैं, ओल्ड एज के हैं, तो ये सब पीपल की कैटेगरीज हो गए. तो ये वो जो चिल्ड्रन हुए ना, अपार्ट फ्रॉम डैट द होल पॉपुलेशन, दे आर कंसिडर्ड एज सैम्पल. होप सो क्लियर हो गया होगा पॉपुलेशन और सैम्पल में डिफरेंस. फिर भी देख लेते हैं पॉपुलेशन का डेफिनेशन क्या बोलता है. इट कैन बी सेड टू बी एन एग्रीगेट ऑब्जर्वेशन ऑफ सब्जेक्ट्स ग्रुप टुगेदर बाय अ कॉमन फीचर. मतलब कि उनका कॉमन फीचर होना चाहिए. जैसे अगर हम किसी जैसे कोलकाता सिटी के बारे में बात करें, तो वहाँ पे अगर हम पॉपुलेशन को कंसिडर करें तो हम चिल्ड्रंस को और यंग एज पीपल जो है, जैसे चिल्ड्रंस हो गए और पेरेंट्स हो गए, तो उन सारे को एक वो अलग अलग है ना. चिल्ड्रंस तो अलग है, फिर पेरेंट्स अलग है, तो फिर उनको हम लोग एक पॉपुलेशन में कंसिडर नहीं कर सकते. पॉपुलेशन वो होता है जिसका कॉमन फीचर होता है. अगर चिल्ड्रन को कंसिडर कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन को ही कंसिडर करेंगे. उसमें भी तो फर्दर डिवीज़न है, जैसे 6 to 12 एज ग्रुप के जो चिल्ड्रन है वो हो गए, या फिर 12+ एज ग्रुप के जो हो गए वो चिल्ड्रन हो गए. बट इसमें हम लोग मेंस एंड वुमेंस को कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है. अगर लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. सपोज वी हैव अ लिस्ट ऑफ इनकम्स ऑफ 1000 पर्सन. हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग के पास एक लिस्ट है जिस लिस्ट में 1000 पर्सन का इनकम के बारे में बताया गया है. ठीक है. तो फॉर सम पर्पस अगर हमें ज़रूरत पड़े उन सबके इनकम की लिस्ट को प्रिपेयर करने का, तो हम देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या होगा हमारा. देन द सेट ऑफ इनकम्स ऑफ 1000 persons इज़ पॉपुलेशन एंड द सेट ऑफ इनकम्स ऑफ 100 persons इज़ अ सैम्पल. देखिए यहाँ पे ही डिफरेंस क्रिएट हो गया. जैसे कि हम लोग क्या एज्यूम किए थे, हम लोग एज्यूम किए थे कि हम लोग के पास एक लिस्ट है. किस चीज़ का लिस्ट है? इनकम्स का लिस्ट है 1000 persons का. तो जो सेट हुआ ना, इनकम का जो सेट हुआ, मतलब 1000 persons का जो सेट हुआ, उसको हम लोग पॉपुलेशन कंसिडर करेंगे. जैसे कि इनकम तो वेरी कर सकता है ना 1000 पर्सन का, सबका सेम तो नहीं हो सकता है क्योंकि सब लोग अलग अलग जॉब में, अलग अलग एम्प्लॉयमेंट में वर्क कर रहे हैं. तो वो जो सेट हुआ उनका इनकम का जो सेट हुआ वो हुआ हमारा पॉपुलेशन. एंड द सेट ऑफ इनकम्स ऑफ 100 persons इज़ अ सैम्पल. और इस 1000 पर्सन में से, ये तो कंप्लीट 1000 पर्सन का है. ठीक है. अगर इस कंप्लीट 1000 पर्सन में से हम किसी 100 या फिर इससे कम पर्सन्स का अगर निकालते हैं, तो वो पॉपुलेशन में से जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो हुआ हमारा सैम्पल. तो आशा करती हूँ कि आप लोग पॉपुलेशन और सैम्पल के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझ गए होंगे. और अगर फिर भी ना समझ में आए तो फिर एक और एग्जांपल देती हूँ. जैसे अगर हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर
ग्रुप ऑफ डाटा है, जैसे जिस डेटा में बहुत सारे वैल्यूज़ दिए हुए हैं 10, 20, 30, और उन सबको अगर टुगेदर एक साथ कंसिडर किया जाए तो वो पॉपुलेशन होता है, और उसमें से अगर हम कुछ पर्टिकुलर पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके उस पर वर्कआउट करें तो डैट इज सैम्पल। नाउ अब तो क्लियर हो ही गया होगा। येस ऑफ कोर्स। सो लेट्स मूव टू प्रोसीड फर्दर। पहले हम लोग वेरिएबल्स के बारे में देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि वेरिएबल वो होता है जिसका एक से ज़्यादा वैल्यू होता है, उसमें किसी भी तरह का वैल्यू रख सकते हैं हम लोग। और फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच का डिफरेंस क्या है। Here we will see types of variable that are discrete variables, random variables, continuous variables, इन सब के बारे में देखेंगे। तो पहले देखते हैं discrete variable क्या है। Variable which assumes a finite or a countable number of possible values। इसका मतलब क्या है? तो ये बोल रहा है कि वैसे वेरिएबल्स जिनका एक पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू हो या फिर जो काउंटेबल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज हो, जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो उनको हम लोग डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहते हैं। और अदर लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि वेरिएबल्स ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग आर नोन एज डिस्क्रीट वेरिएबल्स। नाउ here comes the continuous variable. This is another type of variable. अब continuous variable क्या होता है? देखते हैं हम लोग। वेरिएबल्स विच एज्यूम एन इनफाइनाइट नंबर of possible values usually obtained by measurement are called continuous variables. It means that discrete variable में हम लोग ने देखा था कि वैसे values जिसको काउंट कर सकते हैं, डाटा, इट मीन्स सिंपली ऐसे समझना है कि values which can be counted are categorized as discrete variables, and those values or variables which cannot be counted, okay, which are infinite in numbers, are known as कंटिन्यूस वेरिएबल्स। ओके, या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं अ वेरिएबल विच इज़ नॉट कंटिन्यूस इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिस्क्रीट वेरिएबल। और वैसे वेरिएबल्स जो कंटिन्यूस नहीं हो उन्हें भी हम डिस्क्रीट वेरिएबल कह सकते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जांपल देखते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन अ क्लास। एक क्लास में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं तो वो नंबर हमेशा ही होल नंबर होगा। कभी भी 10.5 स्टूडेंट्स नहीं हो सकता है, 10 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, 11 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। उसी तरह 14.5 कभी नहीं हो सकता, बट 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, एंड एट्सेट्रा। इट कैन बी ओनली अ होल नंबर, नॉट इन अ फ्रैक्शन, नॉट इन अ डेसिमल। ओके, स्टूडेंट्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं भाई, तो सोचने वाली बात है। देन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। हाइट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। एक क्लास में स्टूडेंट्स का जो हाइट होता है उसको हम लोग कंटिन्यूस वेरिएबल के अंदर रखते हैं। क्यों रखा है आइए देखते हैं। क्योंकि इट कैन बी 15.4.9 सेंटीमीटर्स, और अगर फीट और इंचेस में कन्वर्ट करें तो 5 फीट 1 इंचेस, और सिंपली 5 फीट भी हो सकता है। इट मीन्स दैट ज़रूरी नहीं है कि एक होल नंबर में हो, ये कंटिन्यूस वेरिएबल होल नंबर में भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, एंड डेसिमल में भी हो सकता है। इट कैन बी इन एनी फॉर्म, बट discrete variable will only be in form of whole numbers, not in form of decimal or in point value. Okay, then I hope so that आपको continuous variable and discrete variable इन दोनों में difference पता चल गया होगा। Now further moving towards let's proceed to data and observations. अब हम लोग देखते हैं कि data और observations क्या क्या है, ठीक है। तो the values assumed by a variable are known as data और observations। अब वेरिएबल क्या होता है, तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट जो डिफरेंट वैल्यू को एज्यूम कर सकता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि द वैल्यूज़ एज्यूम बाय ए वेरिएबल, तो एक वेरिएबल में तो खुद ही अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ होता है, और अगर कोई एक वेरिएबल अलग अलग वैल्यू को एज्यूम करता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसे हम एक डाटा कहते हैं या फिर ऑब्जर्वेशन कहते हैं। एंड द होल स्टैटिस्टिक्स इज बेस्ड ऑन दिस डेटा एंड कलेक्शन ऑफ डेटा एंड ऑब्जर्वेशंस ओनली। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज फंडामेंटल्स। नाउ
द स्टैटिस्टिक्स दे आर रिगार्डेड एंड समटाइम्स स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि ऐसे तो हम लोग इनको डेटा और ऑब्जर्वेशन कहते हैं, बट इन डिटेल जब हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं तो इन्हीं सारे डेटास को स्टैटिकल डेटा और स्टैटिकल ऑब्जर्वेशंस के नाम से भी जाना जाता है. अगर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से अगर हम लोग समझते हैं, लेट y इज इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स इन अ क्लास. y जो है वो एक वेरिएबल है, वो ये डिनोट कर वो नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय, जो भी मार्क्स स्टूडेंट्स के द्वारा आए हैं एक क्लास में मैथमेटिक्स के पेपर में, वो y के द्वारा डिनोट किया जा रहा है. देन y इज़ अ वेरिएबल, तो यहाँ पे y जो है वो वेरिएबल की तरह काम कर रहा है. इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका हो सकता है, दैट इज़ y डॉट 0 5 81 सम गॉट 90 सम ऑफ देम 70 65 and so on. Okay, now this was all about basic statistics and its related terms. Hope so you all understand. Now we will move to another topic.